Screen, you can hear me well, correct? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So today we are going to talk about uh, uh, we are going to go through chapter 6 of grade 7, which is more about properties of angles. Okay, properties of triangles. Okay, so we have learned that we have learned about triangles having three sides, three angles. Let me let me draw it again. So if we talk about a triangle, this is what comes to our mind. इसको हिंदी में त्रिभुज बुलाते हैं, ठीक है? तो अभी के लिए let me erase this part. It's making it look dirty. हाँ. So this is nearly a triangle, okay? So when we say triangle, that means it has three sides. One, two, three sides, and three angles. This is one angle, this is second angle, this is third angle. Right? So if you have to look at any triangle, or Hindi में त्रिभुज बोलते हैं इसको, it will have six elements to it, three sides and three angles within it. Okay. और इसके अलावा if you want to go one extra mile, you will say there are three vertices also. मतलब vertices मतलब ये points जो है, जो यहाँ पे जहाँ where you have two lines crossing each other, where you have the angles being made. So these are the three vertices. So in total, maximum elements that you will talk about, जो हम जानते हैं इसके बारे में, वो those are nine. One is a set of three lines. Second is a set of three angles, and third is the three vertices where those angles are made. ठीक है, मतलब उसको हिंदी में कहा जाए तो तीन भुजाएं, तीन कोण और तीन क्या बोलते हैं इसको, सीड्स बोलते हैं, वर्टिसेस, या तीन सीड्स जहाँ पे वो कोण बनते हैं. ठीक है, तो अभी तो हमने ट्रायंगल्स के बारे में इतना ही सीखा है. एंड सो नाउ, and again we know that there are different ways to denote these angles or sides, right? Like let's say आपने कहा ये अगर ऐसा है, a, this is b, and this is c. So when you have to denote this particular angle, you will say b a c. So b is always in the center. I mean, sorry, a is always in the center where the angle is made. Okay. So likewise, if you have to talk about this angle, the angle that is made here, you will say ACB or BCA. Net, you will see that C being in the center to denote that is where the angle is made. Okay. So now let's learn about something you might be knowing it others already, but still for the benefit of everybody else, we'll talk about it. तो अभी हमने ट्रायंगल के बारे में सीखा. So this is A. Okay. This is, let's say, B. So this triangle is ABC, triangle ABC, and we know what are the different angles. Now let's look at this side AB. Okay, I'm talking about AB. So come on, I'm talking about AB. Agar if you find a middle point, right? The point that divides this line segment to two parts. Okay, where, let's say, if this is a middle point where I have my cursor right now, if this is a middle point, that means here to here and here to here are the same length. Okay. So if this is a middle point, if you join that point with the next no vertex, right? The opposite point. So अगर इस line AB का middle point को, if you connect that with this one, this is called median. Why it is called median? Because it is something which is splitting this triangle into two equal parts. So if if somebody says what is a median,
ये या हिंदी में इसको बोलते हैं माध्यिका. सो नेट नेट इसका मेन पर्पस ये होता है मीडियन का, दिस डिवाइड्स अ ट्रायंगल टू टू इक्वल पार्ट्स. नाउ देयर आर डिफरेंट वेज यू कैन डिवाइड इट. So let's look at. Are you able to see my screen right now, where I'm showing a presentation PPT? Yes, sir. Yes, sir. Oh, okay. So here, if you see this, here the triangle is ABC, right? And where this side BC is divided into two parts at the point D. Okay. So now, if you connect the point D with A, this is called, this line DA is called the median of the triangle ABC, and that is actually, if you know, just just try visually seeing it, it is splitting the triangle to two equal parts. Same way, you can have how many medians? You can probably have three medians, right, for a triangle, because you can always pick any of the three vertices, like be it B or point A or point C, and then connect that with the median, the middle point of the side opposite to it. जैसे कि हमने यहाँ पर ए पिक किया और उसके ऑपोजिट में जो साइड था बी सी, उसके मिडिल पॉइंट को कनेक्ट कर दिया ए से, तो दैट बिकेम द मीडियन वन. नाउ इफ यू पिक पॉइंट बी एंड देन उसके ऑपोजिट में साइड क्या है, ए सी, राइट. सो इफ यू कनेक्ट बी विद द मिडिल पॉइंट ऑफ साइड ए सी, that could become a second median. Likewise, you can pick C, point C, जो तीसरा वर्टेक्स है. If you connect that with the middle point of line AB, that becomes your third median. So in concept, if you see, median is nothing but a line which divides a triangle into two equal parts. How? Is by connecting one of the vertex with the opposite side का middle point. ठीक है. तभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिख रहा है, right? How many medians can a triangle have? Answer is 3, because you will have as many medians as comparing, you'll have as many medians as you have the number of vertices. Okay. Okay. Now the question is, does a median lie wholly in the interior of a triangle? मतलब median क्या हमेशा triangle के अंदर होता है? Answer is yes, because you are always connecting a vertex with the middle point of the opposite line. तो ये हमेशा, जैसे अपने यहाँ पे AD है, that you see is inside the triangle ABC. So this is like a practical example. I'm just kind of giving an example, like how median relates and what is the purpose of median. So when we look at median, the only intent is, how do I split the triangle into two parts, and there are three ways of doing it. So अगर आप उसको सीधे साधे शब्दों में समझना चाहेंगे तो median is nothing but a knife which cuts your triangle into two parts. तो अगर आप एक साइड से ट्राई करते हैं, मतलब इफ यू स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए वर्टेक्स, देन इट कट्स इन अ डिफरेंट वे. तो अगर यहाँ से आपने स्टार्ट किया तो आपका कम ये तो ऐसा कटेगा, ये एक शेप ऐसा आएगा, दूसरा शेप ऐसा आएगा. अगर आपने यहाँ से इस पॉइंट से बी को से चाकू लगाया अगर, तो ऐसा कटेगा. इट लुक दिस will be one part, this will be second part. So any confusion, others are able to follow me? Yes, sir. Okay, all right. So हमने सीखा median के बारे में. Now let's learn about something called altitude. इसको बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, sea slump. अब altitude, हम लोग altitude को बहुत तरह से यूज करते हैं, right? We say this is the plane is flying at altitude 33,000 feet. तो ऑल्टीट्यूड का मतलब अगर सीधे साधे शब्दों में समझा जाए तो ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है, हिंदी मीनिंग होता है हाइट. समथिंग इज अ वेरी हाई ऑल्टीट्यूड. बोलते ना कि ये दिस सिटी इज एट अ वेरी हाई ऑल्टीट्यूड, मतलब वो काफी ऊंचाई पे बसा हुआ है. तो ऑल्टीट्यूड इज नथिंग बट हाइट. तो
if we talk about altitude in terms of a triangle, we are talking about height of a triangle. So let's look at this. आपका एक come on, I do not have a good marker today. Okay, तो चलिए एक लाइन ये हो गया आपका, ये ट्रायंगल बनाते हैं, थोड़ा बेटर ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि you guys don't say that I'm making a mockery of a triangle. ठीक है, तो देखिए ये हो गया आपका, मान लिया जाए ए, ये हो गया आपका बी, और ये हो गया आपका सी। तो ये ट्रायंगल एबीसी है। अब इसका ऑल्टीट्यूड मतलब बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू इज सी व्हाट इज द हाइट ऑफ अ ट्रायंगल। अगर आपने ट्रायंगल को ऐसे बिठा के रखा हुआ है, बीसी इज ऑन योर बेस सरफेस पे है, अगर तो हाइट क्या होगा, ये वाली हाइट है। और ये हाइट कैसे निकालते हैं? सो व्हाट यू विल डू इज, आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे एक पॉइंट ए जो है वहां पे एक रस्सी बांध दो, एक पत्थर लटका दो उससे, तो सीधा जब जब इसको टच करता है बीसी को, इट विल that length of the string will give you the height of the triangle. मान लिया जाए कि ये पॉइंट बी डी है, इसको टच करता है। तो मैंने तो बहुत ही रूडिमेंट्री तरीका बताया कि भाई ये पत्थर लटका दो यहाँ से ए से, तो ये जब टच करेगा तो ये लेंथ आपका हाइट हो जाएगा। देयर इज अ मोर साइंटिफिक वे अगर आप करना चाहेंगे तो। बेसिकली ये जो पत्थर लटका हुआ है इससे, दिस इज नथिंग बट अ परपेंडिकुलर लाइन ऑन बीसी। मतलब ये अगर 90 डिग्री अगर है, ठीक है, 90 डिग्री का ये जो एंगल, ये ओके, तो ये 90 डिग्री का एंगल ये बना रहा है, ये वाला स्ट्रिंग जो है आपका विथ स्टोन, दैट इज मेकिंग 90 डिग्री एंगल विथ दिस बीसी। तो बेसिकली अगर इसको अल्टीट्यूड को ऐसा समझा जाए साइंटिफिक टर्म्स में, तो वो ये होगा, या सी स्लम जिसको हिंदी में बोल रहे हैं, कि जो फ्रॉम दैट वर्टेक्स द लाइन दैट makes 90 degree angle with, or that is perpendicular to the opposite side, इस वर्टेक्स से उसके अपोजिट लाइन जो है ट्रायंगल में, उसके साथ में जो भी 90 डिग्री एंगल बनाता है, दिस लेंथ ऑफ दैट लाइन इज कॉल्ड altitude. Yeah, we call this as the altitude of this angle from the point A. Likewise, अगर आपने इस ट्रायंगल को मतलब रोटेट कर दिया अगर, एंड C becomes your हाईएस्ट पॉइंट, मतलब ये ऐसा बन जाता है, I might not be drawing it very well, मगर अगर आपका ये C यहाँ पे चला जाता है तो आपका ऑल्टीट्यूड ये हो जाएगा। तो एक डिफरेंस यहाँ पे ऑल्टीट्यूड और मीडियन के बीच में क्या है कि मीडियन इज अ लाइन दैट कनेक्ट्स द वर्टेक्स विद द मिडिल पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड, वो हो गया। और ऑल्टीट्यूड जो होता है दैट इज अ परपेंडिकुलर लाइन टू द फ्रॉम द वर्टेक्स टू द ऑपोजिट साइड ऑफ द ट्रायंगल। मतलब उस ट्रायंगल के आपका हर एक वर्टेक्स का ऑपोजिट में एक साइड होता है, जैसे ये वर्टेक्स है ये वाला, तो इसके ऑपोजिट में ये साइड है। अगर आपका ये वर्टेक्स है, ओके, सो अगर ये आपका वर्टेक्स लेता है तो इसके ऑपोजिट में ये साइड है, ठीक है। तो बेसिकली वर्टेक्स से आपके ऑपोजिट साइड पे अगर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, दैट इज नथिंग बट योर ऑल्टीट्यूड और हाइट ऑफ द ट्रायंगल। तो जैसे हमने देखा कि यू कैन हैव 3 मीडियंस, हर एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड का मिडिल पॉइंट तक को कनेक्ट करने वाला लाइन मीडियन का जाता है। तो लाइकवाइज यू कैन हैव 3 ऑल्टीट्यूड्स आल्सो। मतलब आपने एंगल को जिस ट्रायंगल को जिस एंगल पे या जिस साइड के बेस पे खड़ा किया है, अकॉर्डिंगली यू विल हैव द ऑल्टीट्यूड, ठीक है। सो देयर कैन बी 3 ऑल्टीट्यूड्स। तो let's see if we have some examples that we want to look at. तो देखिए यहाँ पे जैसे कि इस ट्रायंगल एबीसी को अगर आप देख रहे हैं, तो
before we came to the altitude, we were just trying to draw different lines connecting the vertex A with any point on BC. So the line AL, which is perpendicular to BC, that one becomes the altitude, और that one is called the altitude. अभी कुछ इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे. अभी मान लिया जाए, okay, before we go here, there's one more thing that we want to recall based on what we learned, right? So we talked about the 9 elements of a triangle, vertex, 3 vertices, 3 angles, 3 sides. Now we, based on the side or based on the angle, we classify triangles into different types. मतलब कोण के हिसाब से या भुजाओं के हिसाब से. अब इसमें क्या क्या क्लासिफिकेशन था. अगर एंगल के हिसाब से देखा जाए, we had 3 varieties of triangles. We call them acute angle, obtuse angle, and scalene, right? Sorry, acute angle, obtuse angle, or right angle triangle. I kind of mixed up two things. Okay. तो वो ट्रायंगल जिसमें जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, दैट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल. एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल मोर देन 90 डिग्री हो, मतलब ऑब्ट्यूस एंगल हो, तो दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल. और ऐसा कोई ट्रायंगल जिसका एक एटलीस्ट एक एंगल जो है लेस देन 90 डिग्री हो, दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल. तो ये तो एंगल के हिसाब से हुआ. इफ यू लुक एट फ्रॉम अ साइड पर्सपेक्टिव, मतलब साइड्स की प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर जाएंगे, तो देन यू हैव 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स. वन इज कॉल्ड स्केलियन. हिंदी में बोलते हैं उसको विषम बाहु त्रिभुज, मतलब सारे साइड्स उसके अलग अलग साइज के हैं. सेकेंड इज कॉल्ड आइसोसेल्स ट्रायंगल, मतलब उसमें 2 साइड्स बराबर हैं. मतलब अगर ए बी सी अगर ट्रायंगल है, ए बी इज वन साइड, बी सी इज सेकेंड साइड, ए सी इज थर्ड साइड. तो ए बी और ए सी, मतलब जैसे कोई भी 2 साइड अगर आप देखेंगे यहाँ पर, लेट्स से यहाँ पे ए बी सी ट्रायंगल है, अगर ए सी और ए बी या फिर ए बी और बी सी कोई भी 2 साइड सेम है, सेम लेंथ के हैं, दैट इज कॉल्ड आइसोसेल्स ट्रायंगल. या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब 2 बाहु मतलब भुजाएं या साइड्स, और सम मतलब बराबर. तो ऐसा ट्रायंगल जिसके 2 साइड्स बराबर हो, सम द्विबाहु, द्वि मतलब 2, तो 2 भुजाएं बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज. इंग्लिश में बोलते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल. ठीक है. एंड थर्ड इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब जहाँ पे तीनों साइड्स बराबर हो. मतलब यहाँ पे इस ट्रायंगल को देख रहे हैं अगर आप, ए बी बी सी और ए सी का लेंथ बराबर हो, तो दैट इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल. अदर्स कहीं पे कुछ गड़बड़ हो रही हो या कुछ मिस कर रहे हैं या कुछ कंफ्यूजन हो तो बताइएगा आप, है ना. No, sir, no confusion. ओके, ऑलराइट. तो ठीक है, तो हमने ट्रायंगल टाइप्स के बारे में पढ़ा. हमने we did a recap of what we have done before, and then we also talked about the Divyans. Hello, Divyans. हाँ, तो ओके. सो बेसिकली दिव्यांश, आप थोड़ा लेट हो गया आज, तो यू हैव probably missed initial 20-22 minutes of the class. ठीक है. सो what you will do is, आप इस क्लास का वीडियो देख लेंगे अलग से, है ना. एंड अगर कुछ कंफ्यूजन रहा तो फिर पूछ लेंगे. but what we have done so far is, this is chapter 6 of grade 7 maths. तो हमने we did a recap of triangles and what all we know about triangles. ट्रायंगल्स के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, ऑल द 3 साइड्स, 3 एंगल्स एंड 3 वर्टिसेस. उसके बाद हमने मीडियन के बारे में जाना, विच इज नथिंग बट अ लाइन दैट डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू 3 इक्वल पार्ट्स. सो बेसिकली इट्स अ लाइन कनेक्टिंग द वन ऑफ द वर्टिसेस विद द ऑपोजिट साइड का सेंटर पॉइंट. ओके, तो जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, सो इफ यू आर सीइंग द सेकंड triangle, here the second point is connecting basically
the line which has two uh, double mark basically, that is a line connecting vertices number 2 with the opposite side ka middle point. Okay, so that is a median. Then we talked about altitude. एक ट्रायंगल की हाइट क्या होती है, या उसको बोलते altitude को क्या बोलते हैं, altitude को हिंदी में क्या बोलते हैं, altitude को हिंदी में बोलते हैं शीर्ष लंब। हाँ, वही। मैं आजकल एक्चुअली हिंदी का वो जो टर्मिनोलॉजी होता है उसको मैं अपने फोन में रखता हूँ, सो दैट आई कैन रेफर टू इट एट रन टाइम। ठीक है, तो अगेन ऑल्टीट्यूड इज नथिंग बट द हाइट ऑफ अ ट्रायंगल। तो आपने ट्रायंगल का जो भी बेस रखा है, बेस के ऑपोजिट में जो वर्टिसेस है, वर्टेक्स है, उसको कनेक्ट करते हैं विद अ परपेंडिकुलर लाइन, दैट इज द ऑल्टीट्यूड। और उसको निकालने का सिंपल फार्मूला ये है कि इफ यू ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन, if you draw a perpendicular line from the vert, vertex to the opposite line, that is called your altitude. So you can have three altitudes for any given triangle, right? Depending on whichever vertex you are picking up. Okay. All right. तो ये हो गया आपका। तो हमने मीडियन और altitude के बारे में बात की। Now let's do something outside the triangle. हम पढ़ तो रहे हैं triangle. So Divyansh, you are with me, right? आप follow कर पा रहे हो मुझे? You are able to hear me okay? Okay, and you can see my screen also, right? Yes. Okay, very nice. Okay, so though we are talking about triangle, but I want to take you guys outside the triangle. What do I mean by that? So what I did was, let's say this was your triangle A, B, C. Okay, ये था पॉइंट C. मैंने क्या किया, लाइन BC को खींच दिया आगे. So basically I took you outside the triangle, right? That's what I meant. तो यहाँ पे मान लिया जाए कि ये अपने पॉइंट ई तक एक्सटेंड किया, तो आपका ट्रायंगल इज स्टिल ए बी सी, लेकिन दिस इज एन एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, मतलब हमने लाइन बी सी को स्ट्रेच कर दिया सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पे देखेंगे, द ओनली थिंग दैट इज ऑफ कंसर्न फॉर अस इज दिस एंगल, ये जो कोण बन रहा है यहाँ पे, जिसको हम ए सी ई बोल सकते हैं, राइट? तो अभी इसमें अब देखेंगे तो एक चीज हम लोग भी और सीखने वाले हैं कि व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो अभी सही से जल्दी कर लेते हैं। तो वन थिंग दैट वी कैन रिमेंबर ऑलवेज इज एनी ट्रायंगल, उसमें यू विल हैव थ्री एंगल्स, उसका सम हमेशा विल बी 180 डिग्री। दैट यू गाइस नो, करेक्ट? देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ प्रूविंग इट, बट आई होप यू गाइस रिमेंबर दिस थिंग, राइट? नहीं भी तो याद कर लीजिए, हमेशा काम आएगा ये। ठीक है, नाउ सो व्हाट दैट मीन्स इज, ये अगर अगर एक एंगल है, एंगल 1 बोलते हैं इसको, इसको एंगल 2 बोलते हैं, और इसको एंगल 3 बोलते हैं, तो 1 + 2 + 3 is 180 degree. Now, another interesting thing that you can see is this straight line BCE. Okay, this is also 180 degree because this is a flat line. जो आप कंपास में देखते हो, this flat line is 180 degree always. Okay, so that means angle 3 plus, इसको मान लिया जाए हमने 4 बोला अगर, तो angle 3 + 4 is how much? 180 degree. 1 + 2 + 3 is also 180 degree, क्योंकि angle 3 angles of a triangle. हाँ बोलिए दिव्यांश। अरे एक बार रिपीट कर। हाँ देखिए, एक एक चीज याद रखिएगा, रिपीट मतलब जो मैं बता रहा हूँ एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में, राइट? है ना, कि एक ट्रायंगल का
एक त्रिभुज है, उसके तीन कोनों को मिला करके, थ्री एंगल्स को मिला करके इट इज 180 डिग्री. दिस इज व्हाट यू वुड नो, और इफ यू डोंट, जस्ट रिमेंबर दिस फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ. ठीक है, कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो तीनों कोण होते हैं उनको ऐड कर देंगे तो दैट विल बी मैक्सिमम 180 डिग्री. अभी यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने इस ट्रायंगल एबीसी में हमने क्या किया, उसको, इस लाइन बीसी को हमने उसको सीधा स्ट्रेच कर दिया कि भाई यहाँ पे ये बीसी जो है थोड़ा आगे तक गया है. ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये क्या बना, मान ली ई तक आपने स्ट्रेच किया अगर, तो ये एक एंगल बन रहा है ए सी ई. इसको बोलते हैं एंगल ए सी ई. ठीक है, ये एक्स्ट्रा एंगल बन रहा है, इसको एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे या बाह्य कोण बोलेंगे हिंदी में. ठीक है, क्योंकि ये ट्रायंगल के बाहर बना है. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका रिलेवेंस क्या है, मतलब इसको अपने लाइफ में कैसे आप इसको ऐड कर सकते हैं, कैसे, हाउ डू यू रिलेट दैट विद द ट्रायंगल. एक त्रिभुज को हम जो सीख जानते हैं कि त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, तीन साइड्स होता है, तीन वर्टेक्स होता है, या उसको थ्री वर्टिसेस होता है, उसको शीर्ष बोलते हैं उसका, त्रिभुज का. उसको अगर किसी एक साइड को अगर आपने इधर बीसी को स्ट्रेच कर दिया है, मान लिया आपने इसको इधर स्ट्रेच कर दिया होता, अगर एसी को ही सीधा आगे खींच दिया होता, या इस ए बी को ही आगे स्ट्रेच कर दिया होता, राइट. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि ये जो एंगल बना है यहाँ पे बीसी का स्ट्रेच करने पर, अभी देखेंगे ये पूरा एंगल, ये यहाँ से यहाँ तक मिला के कितना है, आदर्श और दिव्यांश, हाउ मच इज दिस एंगल जहां मैं मार्क कर रहा हूँ अभी. Sir, question repeat. मैं बोल रहा हूँ कि ये जो लाइन है यहाँ पे, ये जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, ये यहाँ से यहाँ जो 180. 180 डिग्री, राइट. हमने क्या सीखा, एंड दिस इज, हमने सीखा क्या कि किसी ट्रायंगल का तीनों एंगल मिला के 180 डिग्री होता है, राइट. सो बेसिकली एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. And here also we saw this whole thing is 180 degree. मतलब angle 3 plus angle 4 is 180 degree, है ना. तो इसका क्या मतलब हुआ कि this one angle 1 plus angle, come on, angle 2, this will be equal to what, angle 4, है ना. क्योंकि ये 1 2 3 जो है ट्रायंगल के अंदर क्या, तीन एंगल्स हैं, इसको मिला के 180 होता है, और ये यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में है 3 एंड 4 मिला के 180 डिग्री होता है. तो 3 इज कॉमन बिटवीन दीज टू नो कॉम्बिनेशंस. मतलब 1 और 2 मिला के उसका वैल्यू उतना ही होगा जितना एंगल 4 का वैल्यू होगा. तो दैट इज व्हाट इट मीन्स. तो अगर आप किसी भी ट्रायंगल का एक साइड को आप स्ट्रेच कर देंगे तो जो एक्सटर्नल एंगल बनता है दैट इज अ सम ऑफ two of the opposite angles. That is what I was trying to say in this whole thing. Okay, तो मतलब आपने अगर एक ट्रायंगल ये है आपका, ठीक है, तो अगर आपने इस, मान लिया जाए इस लाइन को स्ट्रेच कर दिया, ठीक है, ये ए था, ये बी था, और ये सी था, और मान लिया जाए आपने ए बी को यहाँ तक एफ तक स्ट्रेच कर दिया अगर, तो ये जो एंगल बना दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल. इसको आप एफ बी सी या सी बी एफ बोल सकते हैं. तो दिस एंगल का सम, दिस एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ दिस एंगल एंड दिस एंगल. ठीक है, क्यों हुआ वो तो हम लोग जान रहे हैं, क्योंकि एक ट्रायंगल का तीनों एंगल मिला के 180 होता है, और ये भी, ये एंगल जो है 180 होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन. तो बेसिकली जो आपका एक्सटीरियर एंगल है दैट इज ऑलवेज सम ऑफ टू ऑपोजिट एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल.
ठीक है, तो ये आपको क्यों है आप समझ गए, कैसे हुआ वो भी हमने देखा। एनी क्वेश्चन? ओके, आदर्श यू आर स्टिल देयर? Yes, sir. ओके, नहीं मुझे दिखा आदर्श लेफ्ट द मीटिंग बोल के, तो आई वाज जस्ट क्यूरियस। ऑलराइट, सो now so we have learned median, we learned about altitude, we learned about the exterior angle and its properties, and we also learned about the sum of the three angles of a triangle. तो चलिए कुछ थोड़ा सा देखा जाए, एग्जांपल्स कुछ सम किया जाए। तो हमने रिवीजन किया नो all the three types of the triangle depending on the angle, acute angle triangle, right angle triangle और obtuse angle triangle। तो वो देखा हमने, एक्सटीरियर एंगल के बारे में देखा। अभी देखिए यहाँ पर कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं, अभी कुछ सम है, ठीक है। देखिए इसमें यहाँ पे क्या है, दिस x, they are asking us to find out the value of x. Now we know that exterior angle is always the sum of the two opposite angles of the triangle। मतलब इसके कोने में ये जो छोड़ दीजिए, ब्लैंक है, छोड़ दीजिए। So here the value of x will be what? Anybody? Quickly. First question में others or Divyans? You guys can see my screen, right? Sir, I cannot see your screen. You cannot see my screen. I was sharing. Okay, let me share it again. Window. Okay. Share. Okay. Can you see it now? Yes, sir. ओके, मैं बोल रहा था कि इसमें कुछ सम कर रहे हैं हम लोग। अभी एक्सटीरियर एंगल के बारे में हमने सीखा। सो इफ यू हैव टू से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच दैट विल बी? Sir, we have to minus this. First, sir, we have to 70 plus 50. We have हाँ, to add it and then we have to minus with 180. बट माय क्वेश्चन वाज व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स, हाउ मच दैट विल बी? आई डोंट Sir, थिंक इट विल। 60 degree. नहीं, मैं एक्स बोल रहा हूँ, विच इज द एक्सटीरियर एंगल हियर। एक्स आपको दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे? दो Yes, लेट sir. मी सेकंड। मेक इट। हाँ, अभी दिख रहा है ठीक से? अभी Yes, यहाँ sir. पे एक्स एक्स का वैल्यू बताइए कितना होगा? देखिए x, दिस इज द एक्सटीरियर एंगल राइट, विच विल बी सम ऑफ द टू ऑपोजिट एंगल्स। क्योंकि x प्लस जो यहाँ पे ब्लैंक है वो मिला के 180 होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल मिला के 180 होते हैं। तो बेसिकली x विल बी सम ऑफ 50 प्लस 70, दैट विल बी 120। लाइकवाइज दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे अगर कि आपको बोल रहा है x का वैल्यू क्या है, विच इज एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, दैट विल बी हाउ मच? Sir, 100। 110. बिल्कुल बिल्कुल। लाइकवाइज थर्ड वन देखिए, 30 प्लस 40, x विल बी 70, है ना? So see, calculation is very easy. What we have to know is what is that we are trying to find out. As soon as you see x, अच्छा x जो है ये एक्सटीरियर एंगल है, मतलब एंगल के बाहर है। और कैसे हुआ है, तो एक एंगल का एक साइड को स्ट्रेच करके बना है। So you are clear in your mind that this is exterior angle. An exterior angle we always know that is the value of two opposite angles of the triangle. That is the sum of two opposite angles. अभी देखिए यहाँ पर here second set, right? What is the value of x? Here you know that x is interior angle, one of the interior angles, right? And you know what is the value of exterior angle. So how much that will be? You can either say कि x plus 50 plus this blank that is not seen here is 180. So this blank is equal to 180 minus 115, right? Because this is a straight line. या फिर आप जानते हो कि भाई exterior angle is always the sum of two opposite angles and x is one of the opposite angles. So basically it will be 115 minus 50, 65, right? तो ठीक है, तो ये तो था कि भाई ये सम करना is always easy if you know what you are trying to solve. So
our effort should not go in no kind of solving the problem. Our effort should always go in understanding the problem first, reading it once, twice, thrice, just to make sure that understanding of the problem is right. उसके बाद solve करना is always very easy. ठीक है? So these were some examples. Now हमने okay, ये भी हमने देखा हुआ triangle का what is the triangle and how do we calculate. अभी देखिए triangle के बारे में हमने सीखा. Let's look at some of the questions here. We also learned that the sum of three angles of a triangle is 180 degree. अगर आपको ऐसा कुछ सिचुएशन दिया रहेगा where you see these questions, right, कि 50, 60 और x, what is the value of x in the first question? You know you have to add 3, so x plus 50 plus 60 is 180. Sum of three angles of a triangle is 100 degree. So 180 में से 50 और 60 को माइनस कर देंगे, that is 70. If you look at the second triangle, this is a right angle triangle. यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिएगा आप लोग, एंगल P, right? This is a right angle, मतलब 90 डिग्री, है ना? तो दिस इज वन सिंबल दैट यू माइट वांट टू रिमेंबर. ओके, किसी ट्रायंगल में एक साइड को अगर से ऐसे एक रेक्टेंगल जैसा बना दिया जाता है ना, दैट डिपिक्ट्स दैट एंगल इज 90 डिग्री, और दैट्स एंड हेंस दैट बिकम्स अ राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है? तो यहाँ पे जो सब दिख रहा, दिस मस्ट बी लुकिंग लाइक अ केक वॉक टू यू गाइस. जस्ट अबाउट नो knowing the fact that the sum of three angles is 180 degree. कौन कौन सा एंगल का वैल्यू दिया हुआ है, जो बच्चा है उसको माइनस कर देंगे. ऑलराइट, ओके. तो हमने एंगल्स का भी देख लिया. अभी आते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द स्पेशल टाइप ऑफ ट्रायंगल्स, टू स्पेशल टाइप ऑफ ट्रायंगल्स. ओके, you can still see my screen, right? You can see my whiteboard. दिव्यांश एंड अदर्स, आप लोग मेरा व्हाइट बोर्ड देख पा रहे हैं जहाँ पे मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ अभी? नो सर. Yes, sir. हाँ, ओके. सर तो ठीक है, एक काम करता हूँ, पहले मैं व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ इधर. ओके, शेयर माय व्हाइट बोर्ड. ओके, अभी बताइए, देख पा रहे हैं व्हाइट बोर्ड? यस सर. तो मेरी ड्राइंग स्किल पे मत जाइए, ठीक है? अभी मैं जो बोलूंगा उसको विश्वास कर लीजिएगा कि ये वाला दो ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया है. ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, इसमें दो साइड्स बराबर हैं, और दूसरा ट्रायंगल इसमें तीनों साइड बराबर है. ये साइड और ये साइड. अगर टू मेक इट मोर स्पेसिफिक, मान लिया जाए कि ये साइड जो बराबर है उसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर. ठीक है, मतलब ये 6 है तो ये भी 6 है. तो हियर टू साइड्स आर सेम. हियर मान लिया जाए कि दिस इज अ ट्रायंगल व्हिच हैज ऑल थ्री साइड्स एज 4 सेंटीमीटर ईच. ठीक है, इन दो ट्रायंगल को क्या बोलते हैं? Where you have two sides same and when you have three sides same. Sir, where three sides are same, it is called as equilateral triangle, and where two sides are same, it is called as isosceles triangle. बिल्कुल. So that is what I was trying to confirm. Okay. तो यहाँ पे जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है that we are trying to learn here. Okay. अब जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल, यस, हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज. दिव्यांश, आप फॉलो कर पा रहे बेटा? Yes, sir. ओके. नहीं, कहीं पे अगर लगे मैं तेज जा रहा हूँ या कुछ कंफ्यूजन है तो डोंट हेजिटेट, आस्क मी. ओके. तो अब जो समबाहु त्रिभुज या इक्विलैटरल ट्रायंगल है,
उसका तीनों साइड बराबर होता है, राइट। तीन, एक और चीज ध्यान रखिएगा कि एंगल्स एंड साइड्स आर इन इक्वल प्रोपोर्शन। मतलब मान लिया जाए कि आपका ये एंगल अगर बड़ा है, ठीक है, तो ये साइड उसके अपोजिट में जो साइड है वो भी बड़ा होगा, ठीक है। एंगल अगर ये छोटा है तो उसका अपोजिट में साइड है उसका वो भी छोटा छोटा साइज होगा, मतलब कंपेयर टू अदर साइड्स, ओके। तो उसका ये मतलब हुआ कि अगर एंगल बराबर है तो साइड भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। मतलब इफ दिस साइड एंड दिस साइड आर सेम, दैट मीन्स ऑल द थ्री एंगल्स आर आल्सो सेम, ठीक है। So if there are three angles, three same angles, मतलब 3 into x, मतलब 3x, that is 180 डिग्री, ठीक है। तो मतलब हर एक एंगल will be 60 degree. So that is what we have to remember. That is what we can infer also, right? कि अगर जो साइड बड़ा होता है तो उसके अपोजिट में जो एंगल बड़ा होता है उसके अपोजिट में जो साइड होता है वो बड़ा होता है, या फिर जो साइड बड़ा है उसके अपोजिट में एंगल है वो बड़ा होगा relatively. So since in the equilateral triangle, two sides, all the three sides are same, that means all the three angles are also same and each angle is 60 degree, ठीक है। अब सेम सेम कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करेंगे, अगर यहाँ पे इक्विलैटरल सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं अगर, तो मैंने क्या कहा कि जो साइड बड़ा होता है उसका अपोजिट में जो एंगल होता है वो बड़ा होता है। अब चूंकि ये साइड और ये साइड बराबर है, मतलब यहाँ पे देखिए 6 और 6 बराबर है, इसके अपोजिट में जो एंगल्स होंगे वो भी बराबर होंगे, ठीक है। सो दिस एंगल दैट यू सी हियर विल बी सेम एज दिस एंगल बिकॉज दीज टू साइड्स आर सेम। तो ये हमेशा ध्यान रखने की बात है। तो आप इसमें देखोगे कि उससे आपका कैलकुलेशन या उसके रिलेटेड जो भी ओके उसके 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 अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेशन कर सकते हो। मतलब दो चीजें ध्यान रखने की है, एक तो है कि द साइड्स विल बी इन प्रोपोर्शन टू द एंगल्स। मतलब this is just a statement, this is not a mathematical statement though। मैं ये बोल रहा हूँ कि if your sides are bigger, the corresponding angle which is opposite to the side will be bigger on a relative scale. If the sides are all the same, the corresponding sides will be the same। तो यहाँ पे इसे दो साइड आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपके दो साइड सेम है तो उसका दो एंगल सेम हो, वो दोनों एंगल सेम होगा जो उसके अपोजिट में है। आइसो सॉरी इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड सेम है तो तीनों एंगल भी सेम होंगे। जब तीनों एंगल सेम है तो दैट मेक्स इट 60 डिग्री ईच। तो अभी मैं दूसरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, लेट्स गो थ्रू सम एग्जांपल्स टू काइंड ऑफ कंफर्म इट। और अभी आप लोगों को मैं पीपीटी दिख पा रहा है क्या? शायद नहीं, पावर पॉइंट नहीं दिख रहा होगा, राइट? ओके, लेट मी शेयर इट नाउ। अभी बताइए आप लोगों को पावर पॉइंट दिख रहा है कि अदर्स, दिव्यांश? Yes, sir. We can see. ओके, ओके, यू कैन सी। तो देखिए यहाँ पे तो खैर वी आर कंटिन्यूइंग विद द सेम थिंग दैट वी लर्न। फर्स्ट पार्ट को मत देखिए अभी, सेकेंड पार्ट में जो क्वेश्चन है, मतलब दोज आर इजी टू सॉल्व क्वेश्चंस, राइट, that you can anyways do because we know the exterior thing, exterior angle concept. Now here we are looking at, okay, there's one more thing that I would want you guys to remember, that is any two sides of a triangle cannot be less than the third side। मतलब अगर मान लिया जाए यहाँ पे आप देख रहे हैं ए बी सी, ठीक है, एक ट्रायंगल जो नीचे दिख रहा है बॉटम में, अगर ए बी और बी सी को ऐड करेंगे this will always be greater than AC, और you just pick any two sides, ठीक है। तो
अगर 2 + 3, हाँ, सो एनी इफ यू पिक एनी टू साइड्स, उसका सम जो होगा ना वो थर्ड साइड से हमेशा बड़ा होगा। अगर नहीं हो रहा है तो वो ट्रायंगल नहीं बना पाएंगे। ट्राई डूइंग दैट एट होम, ओके। Take one side as 2 centimeter, second side as 3 centimeter, and try joining, try making the third side as 4 centimeter, maybe. ठीक है? And then you will, अगर आपका sum of two sides is lesser than the third side, you will not be able to make a triangle, okay? कभी ट्राई करके देखिए होता है कि नहीं, ठीक है? ओके। और तो हमने सीखा आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में, इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में। इक्विलैटरल ट्रायंगल का सारा साइड्स जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, दिस इज ऑल सेम, एनहेंस द एंगल्स, तो सारे एंगल्स हमेशा 60 डिग्री होंगे। अगर हम आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करते हैं अगर, तो उसके दो साइड्स बराबर होते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होते हैं। तो दैट विल हेल्प यू look at the, okay, so here we are talking about the side thing, okay? As I said, any two sides of a triangle cannot be lesser than the third side. अब जैसे यहाँ पे पहला एग्जांपल देखिए, 2 3 5, 2 + 3 मिला करके हो रहा है 5, तो इट हैज टू बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। 2 3 5 में 2 और 3 मिला करके इज नॉट ग्रेटर देन 5, इज इक्वल टू 5, राइट? तो यहाँ पे आप ट्रायंगल नहीं बना पाएंगे। 3 6 7, मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन ले, 5 3 मिला के 5 3 2 नहीं हो रहा, 5 + 3 मिला करके इट्स 8, राइट, विच इज ग्रेटर देन 2, तो दैट पार्ट इज ओके। बट 2 + 3 मिला के 5 हो रहा है, विच इज इक्वल टू 5, तो नहीं बन पाएगा ट्रायंगल, ठीक है? इट हैज टू बी ऑलवेज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ साइड्स, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ टू साइड्स हैज टू बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है? अगर कहीं पे भी गड़बड़ हो रही है तो मतलब वो नहीं बना पाएंगे आप ट्रायंगल, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए 3 6 7, 3 + 6 9 is greater than 7, so looks okay. 6 + 7 is 13, greater than 3, looks okay. 7 + 3 is 10, greater than 6, looks okay. तो यहाँ पे सेकेंड ट्रायंगल बन जाएगा। अब थर्ड ट्रायंगल पे जाइए, 6 3 2, 6 + 3 9, greater than 2, it looks okay. 2 + 3 5, lesser than 6, नहीं होगा, नहीं चलेगा काम, ठीक है? तो ये हो गया आपका ट्रायंगल का साइज के बारे में। अभी एक और स्पेशल चीज होती है ट्रायंगल के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो दिस इज अ प्रॉपर्टी एप्लीकेबल फॉर अ राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब समकोण त्रिभुज। मतलब एक काम करता हूँ, पहले तो मैं स्क्रीन शेयर चेंज करता हूँ। स्टॉप शेयरिंग एंड देन शेयर माय थिंग, ओके। आप लोग को अगर व्हाइट बोर्ड दिख रहा है तो बताइएगा। आर यू एबल टू सी इट? Yes, sir. ओके। तो देखिए, तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी की बात जो हम करते हैं, दैट इज ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल को अगर फिर से रिकॉल करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल विच हैज वन एंगल दैट इज 90 डिग्री, जिसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, राइट? ऐसे मैं दिखा रहा था, रेक्टेंगल, ठीक है? या हिंदी में कहा जाएगा तो इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण मतलब 90 डिग्री, ठीक है? तो ऐसा कोई त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, दैट इज समकोण त्रिभुज, ठीक है? तो ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी जो है दैट अप्लाइज फॉर अ राइट एंगल ट्रायंगल ओनली, ठीक है? अभी के लिए इतना ही ध्यान रखेंगे। अब पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या बोलता है, इसको मान लिया जाए, इसको आप साइड को ए बी को आप मान लिया जाए आप ए बोलते हो, बी सी को मान लिया जाए बी बोलते हो, और ए सी को आप मान लिया जाए सी बोलते हो, तो व्हाट इट सेज इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर।
अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ये और कोई फॉर्मूला नहीं है. दिस इज जस्ट अलाइनिंग विद दिस पाइथागोरस प्रॉपर्टी, या इसको पाइथागोरस थ्योरम, जो भी आप जैसे आप बोलना चाहें. उसका ये मतलब होता है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, कि राइट एंगल ये वाला एंगल है, राइट एंगल, राइट. तो उसके साइड में जो दो साइड्स होते हैं, यहाँ पे ए बी और बी सी दो साइड्स हैं, विच इज मेकिंग द 90 डिग्री. उनका स्क्वायर का सम इज इक्वल टू जो 90 डिग्री वाला एंगल होता है उसका अपोजिट वाला साइड होता है उसका स्क्वायर के बराबर. ठीक है, ठीक है. तो दिस, अब अभी इसको आप जैसे रिलेट करना चाहें तो देखिए 90 डिग्री यहाँ पे विल बी द बिगेस्ट एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल. ठीक है, क्योंकि पूरा तीनों मिला के 180 हो सकता है. आपका एक 90 डिग्री हो गया तो बाकी ये एंगल और ये एंगल मिला के 90 होगा, मतलब दिस इज द बिगेस्ट एंगल. तो दिस इज द बिगेस्ट साइड फॉर श्योर. ठीक है, जैसे हम लोग पहले सीख रहे थे अभी, राइट, कि जो जो एंगल जितना बड़ा होगा उसका अपोजिट में साइड होगा उतना ही बड़ा होगा. सो C is always bigger than A or B, because C is the side opposite to the 90 degree angle, which is the biggest angle of this triangle. ठीक है, तो C will be greater than A or B. That is one thing that we know already. What this Pythagoras theorem says is the square of the sides, which is making that 90 degree in the right angle triangle, sum of the square of these two sides is equal to square of the साइड अपोजिट टू द 90 डिग्री एंगल. ठीक है, तो इसको आप ऐसे ही याद रखेंगे कि 90 डिग्री का जो मतलब कोई भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया था लाइफ में कभी, अगर मान लिया किसी ने बोला कि ये राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये अगर किसी ने बोला आपको कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब कम ऑन यार, माय माउस इज नॉट हेल्पिंग मी टुडे. सो दिस इज 90 डिग्री. ओके, नहीं दिख रहा होगा लेकिन हो सकता है. ठीक है, मेरा ड्राइंग स्किल पे मत जाइए. तो अगर ये साइड 1 है, ये साइड 2 है, ये साइड 3 है, साइड 3 है, 1 2 3 नहीं है, तो यहाँ पे आपको 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3 का स्क्वायर. ठीक है, मतलब साइड 1 का लेंथ का स्क्वायर प्लस साइड 2 का लेंथ का स्क्वायर विल बी इक्वल टू साइड 3 का लेंथ का स्क्वायर. तो ये है पाइथागोरस प्रॉपर्टी जो हमने आज सीखा. तो just a quick recap. We did a recap of what a triangle is, what are the different sides, angles, vertices. उसके बाद हमने सीखा कि triangles can be classified into based on two criteria. One is based on side, जहाँ पे कि हम uh, scalene isosceles and equilateral triangle बोलते हैं, जो कि scalene is विषमबाहु त्रिभुज, isosceles is समद्विबाहु त्रिभुज और equilateral is समबाहु त्रिभुज. हमने उसके बारे में सीखा. उसी तरह एंगल के हिसाब से राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ये मतलब समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और नियम कोण त्रिभुज वो होता है. देन वी लर्न अबाउट मीडियन, which splits the triangle to two parts. Then we learned about what is altitude, how do we derive that, which is the perpendicular line drawn from the one of the vertices to the opposite side. Then we talked about the special properties of equilateral and isosceles triangle. Then we learned about what is the relationship between angles and the corresponding side. कि बड़ा एंगल है तो उसके अपोजिट का साइड जो होगा बड़ा होगा compared to other sides. And then we learn about total angles of a triangle, and then we kind of also learn the next thing, which is all the sides of a triangle. What is the relationship among them? कैसे, how do you decide whether that there is a possibility of a triangle with the three side length or not? कि मतलब अगर दो साइड का लेंथ मिला के थर्ड साइड का लेंथ से छोटा है किसी भी कॉम्बिनेशन में तो वो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है. देन वी लर्न अबाउट द पाइथागोरस प्रॉपर्टी. और हमने सीखा एक्सटीरियर एंगल के बारे में भी, जो बाह्य कोण जो होता है उसके बारे में सीखा हमने कि हाउ डू वी डू कैलकुलेशन विद दैट. सो दैट्स ऑल कवर्स chapter 6 of grade 7 maths. This is where we will stop. If you have any question, I think that was not clear, it's okay to have questions.
But what I would request you guys is watch this video completely, and no, anything that is kind of not clear or ambiguous, always feel free to ask me questions. I'll try answering that, and उसके बाद उसको अगर कुछ समझाना हो तो फिर समझाएंगे इसमें, है ना? So दिव्यांश, आदर्श, कुछ कंफ्यूजन जो हमने पढ़ा उसमें, और इट वाज क्लियर? No, sir. ठीक है। तो दिव्यांश बेटा, आप जो है आप थोड़ा लेट से ज्वाइन किए थे, आगे से कोशिश कीजिएगा कि टाइम पे ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको कुछ मिस होने पे क्या होता है ना, कभी कभी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो अगर आप छूट जाता है तो फिर आपको उसको कैचअप करने के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा, या फिर आपको लगेगा आप पीछे छूट रहे हैं, है ना? तो कोशिश कीजिए टाइम पे ज्वाइन करने का, और अगर कुछ छूट जाए तो आपको फिर वही एक बार वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देख लीजिएगा, तो लगेगा कि अगर कुछ छूटा है या कहीं कुछ कंफ्यूजन है, या मैंने कुछ गलत पढ़ा है, ऐसा भी हो सकता है कि गलत पढ़ा तो आप लोग को, No, तो sir. बताएंगे कि सर ये गलत है, इसको ठीक कर सकते हैं, है ना? ऑल राइट, Yes, sir. ठीक है। चलिए फिर विल डिस्पर्स फॉर नाउ एंड मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। ऑल राइट, चलिए, Bye, sir. बाय बाय।